السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اليوم یوم الاحد، تاریخ 5 رجب 1443 ہجری۔ آج اتوار کا دن ہے، فروری کی 6 تاریخ 2022۔ انشاءاللہ ہم اپنے قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 101 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واذا ضربتم، اور جب تم سفر کرو، فی الارض، زمین میں، فلیسا، کوئی حرج نہیں، علیکم تم پر جناح، فلیسا کو نہیں ہے، علیکم تم پر جناح کوئی حرج، ان تقصروا کہ تم قصر کر لو، تم کم کر لو، من الصلاۃ نماز میں سے، ان خفتم اگر تم ڈرو، ان یفتنکم کہ تمہیں فتنے میں ڈال دے، تمہیں ستائے، الذین کفروا کافر، ان الکافرین بے شک کافر، کانوا لکم ہے تمہارے لیے، عدو مبینہ کھلے دشمن۔ یعنی جب تم زمین میں سفر کرنے لگو، یعنی سفر میں ہو اور تم جو تمہارے پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کر لیا کرو، یعنی کم کر لیا کرو، اگر تمہیں جو سو ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈالیں گے یا تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر جو ہے تمہارے لیے کھلے دشمن ہے۔ اب یہاں پر اگرچہ کہ آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ اس وقت میں حالات کچھ ایسے ہی تھے کہ جو سو جہاں بھی سفر کرتے تو کافروں سے خطرہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ آورہ کر دیں گے، تو اس وجہ سے یہ ساتھ میں کہہ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کافروں کے طرف سے ڈر کا، خوف کا خطرہ نہ ہو تو تم نماز کو قصر نہیں کر سکتے، نہیں، بلکہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صحابہ نے بھی پوچھا تھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خوف کے وقت میں تھا، تو کیا ہم عام طور پہ جب خوف نہ ہو، امن ہو، اس وقت ہم سفر کر رہے ہوں تو کیا ہم جو سو قصر نہ کریں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے پر ایک صدقہ ہے، تم اس کو اختیار کر لو، یعنی اللہ نے جو تم کو اجازت دے دی ہے اس کو تم اختیار کر لو۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنی نمازوں کو کم کر لو، یعنی قصر کر دو، اور جو سو پھر آگے جو سو وہ احوال کے ہاتھ سے جیسے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ایزا پہنچائیں گے یا تمہیں ستائیں گے، اور یقیناً کافر جو تمہارے لیے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اب یہاں پر جو حکم ہے کہ قصر کرنا، نماز کو قصر کرنا، جو عام طور پہ کسی بھی سفر میں ہے اس پہ جائز ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا مختصر سا طریقہ یہ ہوگا، اگرچہ کہ اس میں صرف کم کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، قصر کرنے کے بارے میں، اور قصر کس کو کہتے ہیں؟ کم کرنا، یعنی جو 4 رکعت نماز ہوگی اس کو 2 رکعت پڑھنا، یہ ہوگا سفر کی حالت میں۔ جب انسان سفر میں ہوگا تو جو فرض نمازیں 4 رکعت ہوتی ہے اس کو کم کر کے 2 رکعت پڑھی جائے گی، اس کو کہا جاتا ہے قصر۔ تو اس کے علاوہ بھی جو سو اور ایک سہولت کی اجازت ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمع بین الصلاتین، یعنی 2 نمازوں کو ملا لینا، یا تو تاخیر کر کے یا تقدیم کر کے، تو وہ بھی اجازت ہے، وہ بھی حدیثوں کے ذریعے سے اس کی ثبوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر، اچھا پہلے کیا ہے قصر کے بارے میں ذرا سمجھ لیں کہ جو 4 رکعت کی نماز ہوگی اسی میں قصر کریں گے، اس کو 4 سے گھٹا کر 2 کر دیں گے۔ اب جو مغرب کی 3 رکعت ہے اس میں قصر نہیں ہوگی، وہ 3 ہی پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے فجر کی جو 2 رکعت ہے وہ 2 ہی پڑھی جائے گی، اس میں قصر نہیں ہوگی۔ تو کیا پتا چلا؟ قصر کے معنی اور حکم یہ ہوگا کہ جو 4 رکعت کی نماز ہے، اور 4 رکعت کی کون سی ہے؟ ظہر، عصر اور عشاء۔ تو یہ 3 جو نمازیں ہیں جس میں 4 رکعت فرض ہوتی ہے، تو 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھی جائے گی، اس کو کہا جاتا ہے قصر کرنا۔ اور دوسرا جو حکم ہے، جو ایک سہولت جو دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ جمع کرنے کا، 2 نمازوں کو جمع کر لینا۔ کیسے جمع کرنا؟ یا تو ایک نماز کو تاخیر کر کے یا دوسری نماز کو پہلے کر کے، تقدیم کر کے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان سفر میں ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، اب ظہر کے وقت میں اگر وہ کہیں پر رک سکتا ہے، سفر کر رہا ہے، اور اس کو ایسی جگہ پر رک سکتا ہے جہاں پر پانی وغیرہ کا اہتمام ہو، اور جیسے خاص طور پر آج کل جو کوئی ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں تو ہر جگہ پر آپ کو تو پیٹرول پمپ یا کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر مسجد وغیرہ ہو یا پر حمام وغیرہ کا اہتمام ہو۔ تو ایسے جگہوں پر جہاں پر مثال کے طور پر آپ جو سو سفر کر رہے ہیں لیکن دیکھا کہ ظہر کا وقت یا ظہر کا تھوڑا وقت ہونے کے بعد کہیں پر آپ رک سکتے ہیں، یا آپ کو حاجت بھی ہو رہی ہے رکنے کی، اور وہاں پر رک گئے، تو ہوگا یہ کہ اب وقت کیا ہے؟ ظہر کا وقت ہے، لیکن اسی وقت میں آپ
2 रकात फर्ज ज़ोहर की पढ़ लेंगे, उसके साथ साथ जो सो उसके फौरन बाद जो सो 2 रकात असर की पढ़ लेंगे। तो ये हो गया जमा व कसर व जमा तकदीम, यानी असर को जो सो आपने पहले ला लिया। इस तरीके से जो सो करके पढ़ा जा सकता है। और एक दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि ज़ोहर के वक्त में तो जो आप सफर कर रहे हैं लेकिन आपको हाजत भी नहीं है कि रुकने की, या आपको रास्ते में कोई जगह नहीं मिल रही है रुकने की, तो आप सफर करते रहें यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त खत्म भी हो जाए और असर का वक्त शुरू हो जाए, और आपका ज़ोहर का वक्त खत्म हो रहा है लेकिन आप ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ रहे, आप जो सो आपको इजाजत है कि आप सफर करते रहें, फिर जो सो यहाँ तक कि असर का वक्त शुरू हो गया, या असर का थोड़ा वक्त बाकी है, या असर का वक्त शुरू होकर भी कुछ देर हो चुकी है, उस वक्त में कहीं पर आपको मौका मिलता है, कहीं पर आप रुकते हैं, वहां पर आपने वजू वगैरह कर लिया, उसके बाद आप करेंगे क्या कि पहले 2 रकात ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे, फिर उसके बाद 2 रकात असर की नमाज अदा करेंगे। और इसमें होगा क्या कि अगर आपने मिसाल के तौर पे कहीं अकेले हैं तो पहले वो अजान देंगे, उसके बाद तकबीर कह के ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो सो इकामत कह के सर तकबीर कहना तो इकामत कहकर जो सो आप ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे, फिर उसके बाद इकामत कहकर असर की नमाज अदा करेंगे। तो इस तरीके से, और अगर कोई मस्जिद वगैरह है रास्ते में और पहले कुछ लोगों ने नमाज पढ़ चुके होंगे तो सिर्फ आप जो सो इकामत कहकर पहले ज़ोहर पढ़ेंगे, बाद में असर पढ़ेंगे। अब इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहेंगे कसर व जमा ताखीर के साथ। तो इसमें क्या होगा कि ज़ोहर की नमाज अगरचे के ज़ोहर का वक्त खत्म भी हो गया, आपने नमाज को जो सो वक्त में नहीं पढ़ा, ताखीर किया, तो ये दोनों तरीके जायज है। अब उसी तरीके से मगरिब के लिए भी यही होगा। अच्छा, लेकिन होगा ये कि ज़ोहर और असर को ही मिला सकेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि असर के वक्त में अब असर और मगरिब को मिलाएं, या असर का वक्त देर कर कर मगरिब के वक्त में पहले असर और मगरिब पढ़े, नहीं। तो ये गुंजाइश जो है ज़ोहर असर को करनी चाहिए, उसके बाद मगरिब और इशा को मिला सकते हैं। इस तरीके से मिसाल के तौर पर अब मगरिब का वक्त हो गया, चाहे तो मगरिब के वक्त रुक कर मगरिब के बाद जो सो 2 रकात इशा पढ़ ले, या नहीं तो मगरिब का वक्त होने के बावजूद भी आप सफर करते रहें यहाँ तक कि इशा का वक्त हो जाए, और जब इशा का वक्त हो जाए तो पहले मगरिब की 3 रकात पढ़े, फिर उसके बाद जो सो इशा की 2 रकात पढ़े। ये होगा तरीका। तो ज़ोहर असर को मिला सकते हैं या तो ज़ोहर के वक्त में, या फिर ज़ोहर को ताखिर करके ज़ोहर असर असर के वक्त। उसी तरीके से जो सो मगरिब और इशा को मिला सकते हैं मगरिब के वक्त, या फिर मगरिब को ताखिर करके इशा के वक्त में मगरिब और इशा पढ़ सकते हैं। ये तरीका है। जैसे कि खास तौर पे हज के वक्त में भी जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरफात के मैदान से निकलना था तो आपने सहाबा को हुक्म दिया कि अरफात में अगरचे के मगरिब का वक्त हो चुका था, आपने कहा कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम मुजदलिफा जाकर नमाज पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बहरहाल ये तरीका है। तो ये दोनों चीजें जायज है जब भी आप सफर में होंगे। अब उसके बाद में और क्या बात थी कि खास तौर पे, और अच्छा, जो नफिल नमाजें होती है, यानी खास तौर पे जो सो ज़ोहर की पहली की सुन्नतें और ज़ोहर की बाद की सुन्नतें, उसी तरीके से जो सो मगरिब की 2 सुन्नतें, ये बहरहाल, और इशा की 2 सुन्नतें, ये जो सुन्नतें हैं सफर के दरमियान में आपको इसको पढ़ने की इजाजत, इसको जरूरत नहीं है, इसको जो सो छोड़ दिया गया है। हाँ, फजर की जो 2 सुन्नतें हैं उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप जो सो सफर में भी जो सो उसको पढ़ा करते थे, यानी फजर के वक्त में आप सफर में भी होते हैं तो फजर से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ दें, फिर उसके बाद फजर की 2 रकात फर्ज पढ़ दें। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में जो सो सुन्नतों को छोड़ दिया गया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप नमाज, फर्ज नमाज खुद कम कर दी जा रही है, तो बहरहाल सुन्नत जो नफिल नमाजें होती हैं उसको माफ कर दिया गया है। तो बहरहाल ये मुख्तसर सा जो सो सफर के दौरान में जब इंसान होता है तो खसर और जमा करने का तरीका है जो मैंने बयान किया। अगर उसमें कुछ बात भूल रहा हूँ तो बाद में आप लोग साथ पूछ सकते हैं। वइज़ा कुंता फ़ीहिम, और अगर आप जब दरमियान में हो उनके, फ़अक़मत लहुमुस्सलाता, फिर आप कायम करने लगे इनके लिए नमाज, फ़लतक़ुम, बस तो चाहिए कि खड़े हो जाए, ताइफ़तुम मिनहुम, उनमें से एक जमात, माअका, आपके साथ, वलयाख़ुज़ अस्लिहतहुम, और उनको चाहिए कि वो अपने हथियार को उठाए रखें, फ़इज़ा सजदू, फिर जब वो सजदा कर लें, फ़लयकूनू, फिर वो हो जाएं, मिन वराइकुम, तुम्हारे पीछे, वला ताती, वल ताती, और चाहिए कि आ जाए, ताइफतुन उखरा, दूसरी जमात, लम युसल्लू, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, फयुसल्लू माका, वो नमाज पढ़ लें आपके साथ, वल याखुस हिजरहुम, और उनको चाहिए कि वो अपने बचाव का सामान इख्तियार कर लें, व अस्लिहतहुम, और अपने हथियार को, वद्दल्लज़ीना कफरू, चाहते हैं काफिर लोग,
लौ तगफुलूना कि तुम गाफिल हो जाओ अन असलिहतिकुम तुम्हारे अपने असला हथियारों से, और वह अमतिअतिकुम और तुम्हारे सामान से, फल यमीलूना अलैकुम फिर वो तुम हमला कर दे तुम पर, मैलतन वाहिदतन एक ही बड़ा हमला, वला जुनाहा अलैकुम और कोई गुनाह नहीं है तुम पर, इन काना बिकुम अगर तुम पर तुम्हें हो अजन कोई तकलीफ, फी फी मिन मतरिन बारिश की वजह से, औ कुन तुम मरजा या फिर तुम हो बीमार, औ तजाऊ असलिहतिकुम अन तजाऊ असलिहतुम कि तुम जो सो तुम उतार दो अपने असलिहे को अपने हथियारों को, व खुजू हिजरकुम और तुम तैयार कर लो अपने बचाव का सामान, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह आद्दा लिल काफिरीना तैयार कर रखा है काफिरों के लिए अजाब मुहीना जिल्लत वाला अजाब। यानी अब इस आयत में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इनके दरमियान में मौजूद हो और जब नमाज का वक्त शुरू हो जाए और नमाज कायम करने को हो, तो उन लोगों में से यानी आपके साथ जो साथी है उन लोगों को चाहिए कि उनमें से एक जमात, और ये खास तौर पे नमाज खौफ है, यानी जब जंग चल रही हो, जंग की हालत हो, और जंग में ऐसी हालत हो कि जो सो कुफार जो सो आपको कुछ लम्हे के लिए भी इजाजत नहीं दे रहे हो कि आप उसे नमाज पढ़ सके, तो ऐसी सूरत में भी जो नमाज पढ़ने का तरीका है जिसको नमाज खौफ कहा जाता, सलातुल खौफ कहा जाता, उसका तरीका अल्लाह ताला यहाँ पर तफसील से बयान कर रहे हैं। वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप इनके दरमियान में मौजूद हो और इनके लिए आप नमाज की इकामत होने लगे, तो क्या होना चाहिए, जो मुजाहिदीन है उनमें की एक जमात जो सो आपके साथ नमाज के लिए खड़ी हो जाए और वो अपने हथियार को भी साथ में ले लें, और जब वो सजदा कर चुके यानी एक रकात पढ़कर या दो रकात पढ़कर, जैसे कि हदीसों में इसकी दोनों तफसीलें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों रिवायतें हैं कि आपने एक रकात पढ़ाई या किसी रिवायतों में दो रकात पढ़ाई, तो बहरहाल जब वो सजदा कर चुके तो उनको चाहिए जो पहली जमात जो है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, अच्छा जब होगा क्या कि दो टुकड़ियों में पड़ जाएंगे मुजाहिदीन मुसलमान जो है, दो हिस्सों में पड़ जाएंगे, एक हिस्सा जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहा होगा, दूसरा हिस्सा जो सो पीछे जो सो दुश्मनों का मुकाबला कर रहा होगा। तो पहली जमात जो पहला एक हिस्सा पहले के जो लोग जो नमाज पढ़ चुके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यानी जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो सजदा कर चुके तो उनको चाहिए कि वो पीछे चले जाएं, यानी एक रकात या दो रकात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो पढ़ चुके हैं उसके बाद उनको चाहिए कि वो जो सब पीछे चले जाए, मतलब क्या है कि वो जाकर दुश्मनों का मुकाबला करे, और वो लोग जो पहले मुकाबले के लिए थे वो लोग सामने आए और नबी के पीछे जो सो उन लोग भी नमाज को अदा करें। तो ये अल्लाह ताला जो सो इस आयत में हुक्म बयान कर रहे हैं, तफसील बयान कर रहे हैं कि जब नमाज खौफ जो होगी यानी जंग की हालत में जब जंग चल रही होगी उस हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप इमामत करें, और जो सब मुसलमान जो साथी आपके साथ है जो मुजाहिदीन है उनको चाहिए कि दो हिस्सों में बट जाएं, एक हिस्सा जो सो पहले आपके साथ जो नमाज पढ़े तो दूसरा हिस्सा हिफाजत करते रहे, और जो पहली हिस्सा जो जब सजदा करके कर ले तो वो जो सो पीछे चले जाए, उसके बाद जो सो जो पहली जमात जिसने पहले नमाज नहीं पढ़ी थी वो सामने आएंगे और वो जो सो नबी के साथ नमाज पढ़ेंगे। तो इससे ये भी साबित होता है कि नमाज को उसके वक्त पे पढ़ने की कितनी ज्यादा अहमियत है, कितनी ज्यादा फर्ज है, और फजीलत अंदाजा करें कि अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन के खातिर मुसलमान जो जिहाद कर रहे हैं, वहां पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिहाद की हालत में भी जबकि अपनी जानों की बाजी लगाए हुए हैं अल्लाह के दीन के खातिर, उस वक्त भी ये नहीं कहा जा रहा कि कोई बात नहीं तुम्हारे लिए नमाज माफ है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि आप इकामत आप जमात कराइए, और मुसलमान जो मुजाहिदीन है वो दो हिस्सों में बढ़कर इस तरीके से आपके साथ नमाज अदा करें। और इसके और तफसीलात जो हदीसों में है कि किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे, तो बहरहाल इसकी तफसीलात में ना जाते हुए हम मुख्तसर इसको पढ़ लेंगे। तो बहरहाल उसके बाद क्या कहा जा रहा कि जब वो दूसरी जमात भी आ जाए उसके आपके साथ नमाज पढ़े और वो अपने हथियार को उठाए रहे, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुफार तो चाहते ही हैं कि तुमको जो से किसी तरीके से अपने हथियार और तुम्हारे अपने साजो सामान से तुमको गाफिल कर दे, ताकि वो अचानक तुम्हारे ऊपर धावा बोल दे, तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। और यकीनन कुफार जो है उनका जो सो अच्छा फिर उसके बाद अल्लाह ताला करेंगे तुम्हारे पर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम अपने हथियार को उतार दो जबकि तुम्हें
कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ बारिश के वजह से या बीमारी की वजह से तुम्हें तकलीफ हो, या तुम दूसरा और कोई मुसीबत या ना कोई तकलीफ, वरना तो क्या है जब जंग की हालत में है तो तुमको अपने हथियार उठाए हुए रखना है और बिल्कुल तैयार रहना है। लेकिन अगर तुम बीमार हो या बारिश की वजह से तुम्हें तकलीफ हो तो तुमको कोई हरज नहीं है तुम्हारे ऊपर कि तुम अपने असलाह को उतारे रख दो। और बेशक अल्लाह ताला तो जालिमों के काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब तैयार करके रखा है। तो बहरहाल इस आयत के अंदर हमको अंदाजा करने की जरूरत है कि जब जंग भी चल रही हो उस वक्त में भी अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं और सहाबा को भी बता रहे हैं कि किस तरीके से नमाज पढ़नी है। तो हम में से वो लोग जो कि छोटे छोटे बेवजह के बहानों की वजह से नमाजों को ज़ाय कर लेते हैं, कोई कहता है कि मैं कारोबार में मसरूफ हूँ, कोई कहता है कि मैं तो जैसे स्कूल जाता हूँ, कोई कहता है मैं कॉलेज को जाता हूँ, कोई कहता है कि मेरे ऑफिस में नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। तो हम इस तरीके के हीले बहाने जो करते हैं उनको जरा इस आयतों पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला किस तरीके से हुक्म दे रहे हैं। और जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका क्या था कि जंग के दौरान में भी, जंग के मैदान में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नमाज पढ़ाते रहे। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बिस्तर मर्ज पर जब आप थे, आपके आखिरी अय्याम चल रहे थे, उस वक्त में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल यही था कि जैसे ही आपको इफाकत होती, आप अक्सर बेहोशी के आलम में चले जाते, जब जैसे आपको होश आता तो आप फौरन जो सो वजू करके नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते। उसी तरीके से जो सो आप हमेशा जब भी आपको होश आता तो लोगों के बारे में पूछते कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ लिया है, कहते कि नहीं नहीं पढ़े हैं, तो आप जो सो मस्जिद में जाकर, बल्कि यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त का हाल ये था कि आप चल नहीं पा रहे थे, तो दो सहाबा जो सो आपको अपने कांधों के ऊपर जो सो अपने हाथों के ऊपर जरिए से जो सो सहारा देकर ले जा रहे थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ जो सो पैर जो सो जमीन पर घसीट रहे थे। इस तरीके से उस हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में गए और आपने नमाज पढ़ाई साथियों को। बल्कि जो सो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को पहले हुक्म दिया था कि वो नमाज पढ़ाए, फिर आपको थोड़ा सा इफाका मिला तो आप मस्जिद में आने लगे, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो पीछे हटने लगे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा करा कि नहीं वहीं पर ठहरे रहो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाजू में जाकर बैठ गए और आप नमाज पढ़ाते थे। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक तकबीरें कहते थे। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही साबित है कि आखिरी वक्त में भी, आपकी बीमारी में भी आपने नमाज को नहीं छोड़ा। तो इसलिए हमको भी और आपको भी चाहिए कि हद्दल इम्कान नमाज को कायम करें, नमाज पर कायम रहें। नमाज छोड़ने का कोई उज़र इंसान को बाकी नहीं है सिवाय उसके जो शरई उज़र है, यानी औरतों को जो उनके अय्याम होते हैं उस वक्त में, या फिर कोई इंसान जो सो बीमार भी है तो उसके लिए भी कहा गया है कि अगर बीमारी की हालत में अगर वो खड़ा नहीं हो सकता है तो बैठ कर पढ़े, और बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता है तो लेट कर पढ़े। तो इस तरीके से बहरहाल नमाज की एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में बहुत ज्यादा सख्ती है। उसी तरीके से नमाज ही ऐसी इबादत है जिसके बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा। तो हम मुसलमानों को अल्लाह तौफीक दे कि हम नमाजों को, बल्कि आगे भी आ रहा है, उसको अपने वक्तों पर अदा करें, उनकी जो शराइत है उसके साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। फ़इज़ा ख़ज़मतुमुस्सलाता, फिर जब तुम अदा कर चुको नमाज को, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो जिक्र करो अल्लाह का, क़ियामन व क़ूदन, खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, व अला जुनूबिकुम, और अपने करवट के बल्ले भी। फ़इज़ा फ़इज़ा तत्मअन्नुम, और फिर जब तुम अमन में आ जाओ, यानी इत्मीनान में आ जाओ, फ़अक़िमुस्सलाता, तो कायम करो नमाज को, इन्नस्सलाता, बेशक नमाज, कानत अलल मोमिनीना, है मोमिनों के ऊपर, किताबम मौक़ूता, फर्ज किया हुआ, औकात पर, यानी मुक़र्ररा वक्तों पर। यानी अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जब तुम अमन में आ जाओ, उसके बाद क्या है, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो फिर अल्लाह का जिक्र करो, खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, और अपने करवटों के बल भी, यानी लेटे हुए भी अल्लाह का जिक्र करो। और जब तुम इत्मीनान में आ जाओ, यानी जब अमन में आ जाओ, जंग खत्म हो जाए और सफर वगैरह खत्म हो जाए और तुम इत्मीनान में आ जाओ, तो नमाज को कायम करो। मतलब क्या है कि पहले जैसे पूरी नमाज अदा करनी थी उस तरीके से नमाज अदा करो। और यकीनन नमाज को अल्लाह ताला ने मोमिनों पर फर्ज किया है उनके वक्तों पर। तो ये बहुत बड़ी अहमियत है कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, उसके शुरूत के साथ, जो जो उसके शर्तें हैं उसके साथ अदा करना, ये फर्ज किया गया है मोमिनों पर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारे और काफिरों के दरमियान में फर्क करने वाली चीज नमाज है। जिसने नमाज को छोड़ा तो उसने दर हकीकत में या तो कुफ्र किया या तो शिर्क किया। तो बहरहाल नमाज की हकीकत, नमाज की अहमियत के बारे में इंशाल्लाह कभी तफसील से बयान कर सकते हैं, और उसकी अहमियत भी बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पर इतना समझ लें
کہ چاہے انسان جنگ کی حالت میں بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جنگ کے احوال کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. وہ بھی کون سی جنگ؟ اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کے خاطر جو جنگ چل رہی ہو, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت میں تو تمہاری نمازیں معاف ہے یا اس کی نمازیں تم بعد میں ادا کر لو, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے اور آپ امامت کیجیے اور ساتھ ہی آپ کے صحابہ جو سو نماز ادا کریں. اور اسی طریقے سے پھر کہا جا رہا ہے کہ نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ فرض کیا گیا ہے مومنوں کے اوپر. تو بہرحال ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں, اس کے اوقات کے مطابق اور اس کے جو شروط ہے اس کے مطابق ادا کریں. ولا تہینوا, اور تم ہمت نہ ہارو, ابتغاء القوم, پیچھا کرنے میں قوم کا یعنی کافروں کا, یعنی تم جو سو کافروں کا پیچھا کرنے میں سستی اور ہمت نہ ہارو. ان تکونوا تعلمون, اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے, تمہیں تکلیف پہنچی ہے, فإنہم یعلمون, تو بے شک انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے, انہیں بھی دکھ پہنچا ہے, کما تعلمون, جیسے تمہیں تکلیف پہنچی ہے, جیسے تمہیں دکھ پہنچا ہے. وترجون من اللہ, اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے, ما لا یرجون, جو وہ امید نہیں رکھتے. وکان اللہ, اور ہے اللہ, علیما حکیما, علم والا, حکمت والا. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کافروں کا پیچھا کرنے میں سستی اور کاہلی مت کرو, اور اگر تمہیں جو سو تکلیف پہنچی ہے, تمہیں جو سو دکھ پہنچا ہے, تو یاد رکھو کہ ان کو بھی تو دکھ پہنچا ہے جیسے تم کو دکھ پہنچا ہے. اور یاد رکھو کہ تم تو وہ اللہ سے وہ چیز کا امید رکھتے ہیں جو وہ امید نہیں رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو علم والا, حکمت والا ہے. مطلب کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں, جنگ کے بعد اور جنگ کے حالت میں جب تم کو موقع ملے اور تم کو چاہیے کہ کافروں کا پیچھا کرنا ہے, تو اس وقت میں تم پیچھے نہ رہ جاؤ, کافروں کا بھرپور پیچھا کرو, ان کو تعاقب کرو, ان پہ جو سو ان پہ اٹیک کرنے میں کوئی پیچھے نہ رہ جاؤ. اور رہی بات کہ جنگ میں اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے, تمہیں زخم آئے ہیں, تمہیں جو سو اور تمہارے مسلمان بہت سارے شہید بھی ہوئے ہیں, تو یاد رکھو کہ ان کے ساتھ بھی تو ایسا ہی معاملہ ہوا ہے. یعنی جو مثال کے طور پر اگر ہم جنگ اگر اس کو جنگ احد کے وقت کا معاملہ لیتے ہیں, جبکہ مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا تھا, اس وقت میں کیا ہوا تھا, مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دلاتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا نقصان ہوا ہے, تمہارے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور تمہارے لوگ جو سو شہید بھی ہوئے ہیں, تو یاد رکھو کہ جو سو اس جنگ احد میں ہی ابتدا میں تم نے بھی جو سو کافروں کو جو سو زخمی کیا, ان کو بھی جو سو قتل کیا, اسی طریقے سے جنگ بدر میں تم نے ان کے ساتھ یہ کیا. تو بہرحال مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہمت دلانے کے لیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو کافروں کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچی ہے, بلکہ تمہارے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جو جس کا امید وہ نہیں رکھتے. مطلب کیا ہے کہ ہر حال میں تمہیں تو اللہ کی طرف سے اس کا فضل کا امید ہے. یعنی اگر تم جو سو جنگ میں جو سو شہید بھی ہوگے تو تم کو اللہ تعالیٰ درجات میں بلند دے گا, جنت عطا کرے گا, اور اگر تم کامیاب ہو کے لوٹ کر آؤ گے تو اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہوگی. تو ہر حال میں تمہارے لیے تو خیر ہی خیر ہے, جبکہ کافروں کے لیے اس چیز کی امید نہیں ہے. یعنی اگر وہ مریں گے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے, اور اگر لوٹ کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ ان کو خوشی ہوگی, لیکن اگر ان کا قتل ہوگا تو کوئی امید نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے تو اللہ کی طرف سے تو ہر حال میں خیر و بھلائی ہے, تو لہٰذا تم کو چاہیے کہ کافروں کا پیچھا کرنے میں سستی اور کاہلی نہ کرو, تم ان کا بھرپور پیچھا کرو, اور اللہ تعالیٰ تو علم والا, حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب, بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو, بالحق, حق کے ساتھ, لتحکم بین الناس, تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان میں, بما اراک اللہ, اس کے سبب, اس کے ذریعے سے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. ولا تکن, اور نہ ہو جائیے, للخائنین, خیانت کرنے والوں کے لیے, خصیما, ان کا طرفداری کرنے والوں کے. یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں اس چیز کے ذریعے سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھلایا ہے, اور آپ جو سو خبردار خیانت کرنے والوں کے طرفدار مت بن جائیے, یعنی ان لوگوں کا ساتھ مت دیجیے جو خیانت کرتے ہیں. تو یہ آیت اور اس کے آگے کی جو آیتیں ہیں, اس کا شان نزول یہ ہے, تاکہ میں پہلے شان نزول بتا دوں تاکہ ہم کو آیتیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ہوا یہ تھا کہ جو سو مدینے میں جو سو انصار میں سے ایک جو ان کا ایک گروہ تھا, ایک قبیلہ تھا, ان لوگوں نے, ان میں سے کسی نے جو سو ایک یہودی کی جو ایک جو سو بہرحال ایک ان لوگوں نے جو سو ایک زرہ, کسی کی زرہ چرا گیا. زرہ کیا ہے, جو شیلڈ ہوتی ہے, جو جنگ کے میدان میں جو سو انسان جو جنگ کے ہتھیار سے کیا ماروں سے ڈرنے کے لیے جو شیلڈ کہا جاتا نا سر کے اوپر, اور سر کے اوپر جو لوہے کی ایک وہ ہوتی ہے, لباس کی طرح ہوتا ہے, جس کو زرہ کہا جاتا.
वो चीज उसने जो सो एक इंसान ने जो सो एक अंसारियों में से एक किसी ने जो सो चुरा लिया। चुरा लेने के बाद हुआ ये कि जब उसका चर्चा होने लगा, जब उसकी बात फैलने लगी और उसको डर ये लगा कि हो सकता है उसकी चोरी वाज़ेह पकड़ी जाए और वो चोरी साबित हो जाए, तो उसने चालाकी करते हुए उसने क्या किया, उस ज़िरा को लेकर एक यहूदी के घर के अंदर फेंक दिया। यानी चोरी तो खुद किया था, लेकिन जब डर लगा उसको कि जो सो चोरी पकड़ी जाएगी, तो उसने जो सो उसको इल्ज़ाम को दूसरे के ऊपर डालने के लिए एक यहूदी के घर में उसको फेंक दिया। और हुआ ये कि जब वो उसके बाद में वही खुद जो चोर था हकीकत में, वो चोर और कुछ साथी मिलके जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पावर कराने की कोशिश किया कि दर हकीकत में फला जो जिसके घर में इन लोगों ने जिरा फेंक दी थी, उसका नाम लेकर कहा कि फला यहूदी ने जो सो बहरहाल ये जिरा चोरी की है। तो उनके जो साथी थे वो सब ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से बताने की कोशिश किया, इस तरीके से ये पावर कराने की कोशिश किया कि दर हकीकत में वो फला यहूदी जो है जिसके घर में जिन लोगों ने जिरा फेंक दी थी, उसको उसके तरफ ये इल्जाम लगाने की कोशिश किया कि उसने चोरी की है। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठी बात कर कर आपको जो सो ये पावर कराने की कोशिश कर रहे थे। और ऐन मुमकिन था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों में आ जाते और उनको जो सो बेगुनाह और यहूदी को गुनाहगार साबित कर देते। तो इस पसे मंजर में अल्लाह ताला ने इन आयतों को नाजिल किया है। तो पहली आयत में अल्लाह ताला इसमें क्या कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ किताब को नाजिल किया है ताकि हक के साथ, यानी बिल्कुल हक और सच्ची और सही सही तौर पर अल्लाह ताला ने आपकी तरफ किताब नाजिल किया है ताकि आप लोगों के दरमियान में फैसला करें हक के साथ, उसके 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 जरिए से जो अल्लाह ने आपको निशानियां दिखाया है। और खबरदार आप ना हो जाइए उन लोगों के खयानत करने वालों के तरफदार मत हो जाइए। ये क्यों कहा जा रहा? क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के तरफ रागिब होने लगे और आप दिल ही दिल में ये समझने लगे कि यकीनन जो ये लोग कह रहे हैं कि यहूदी चोर है तो यहूदी हो सकता है चोर है, और हो सकता है ये लोग बिल्कुल बेगुनाह जबकि खुद वही गुनाहगार थे। तो उस वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खबरदार आप जो सो खयानत करने वालों का साथ देने वाले मत बन जाइए, उनके हिमायती और उनके तरफदार मत बन जाइए। वस्तगफिरुल्लाह, और बख्शिश तलब कीजिए अल्लाह से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना गफूर रहीमा, बख्शने वाला रहम करने वाला। देखें क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अब अल्लाह से बख्शिश तलब कीजिए। किस लिए? क्योंकि आप जो सो ना समझते हुए, आपको जो सो ना इल्मी में आपने एक तरफ की बात सुन लेकर आपने ये गुमान कर लिया कि यकीनन चोर जो सो यहूदी है और जो लोग आपके पास आए हैं वो बेगुनाह है। तो आपका जो रुझान एक तरफ हो गया था, एक तरफ आप जो सो झुकने लगे थे। तो इस वजह से यानी ये आपके तरफ से जो सो एक गलती थी। आप जो सो एक तरफ की बात को सुनकर जो सो आप फैसला करने जा रहे थे, तो लिहाजा आप अल्लाह से बख्शिश तलब कीजिए। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ला वला तुजादिल, और ना झगड़ा कीजिए, ना तरफदारी कीजिए, अनिल लजीना यख्तानूना, उन लोगों की तरफ से जो खियानत करते हैं, अनफुसहुम, अपने नफ्सों के साथ। यानी आप उन लोगों की तरफदारी करते हुए झगड़ा ना कीजिए जो लोग अपने नफ्सों के साथ खियानत करते हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, पसंद नहीं करता, मन काना, जो कोई हो, खव्वानन असीमा, जो कि खयानत करने वाला गुनहगार हो। देखें अल्लाह ताला कितनी अच्छे अंदाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एक तौर पे रहनुमाई फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला इस आयत में क्या कह रहे हैं, आप झगड़ा ना कीजिए। मतलब क्या है कि आप तरफदारी और तायद मत कीजिए उन लोगों का जिन्होंने जो सो खयानत की अपने नफ्सों के साथ, यानी जिन्होंने खुद चोरी की और उस चोरी करने के बावजूद अब इल्जाम दूसरों पर ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कि दर हकीकत में अपने नफ्सों के साथ खयानत कर रहे हैं, तो उन लोगों की तरफदारी मत कीजिए, उन लोगों की तायद मत कीजिए। बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं करता उन लोगों को जो कि खाइन है, यानी खयानत करने वाले, गुनहगार है। यस्तखफून मिनन नासी, वो डरते हैं लोगों से, यानी वो जो सो शर्माते हैं लोगों से। वला यस्तखफून, और वो नहीं शर्माते, नहीं डरते, मिनल्लाहि, अल्लाह से। वह हुआ माअहुम, हालांकि वो उनके साथ होता है। इस युबय्यितूना, जबकि वो रातों में मशवरे कर रहे होते, माला यरजा मिनल कौली, जिससे राजी नहीं होता उनकी उस बात से, यानी अल्लाह ताला उनकी उस बात से राजी नहीं होता। वकान अल्लाह, और है अल्लाह, बिमा यामलूना मुहीता, जो कुछ वो अमल कर रहे हैं उसको इहाता किए हुए, उसको घेरे हुए। यानी अल्लाह ताला क्या करेंगे, वो लोग तो लोगों से डरते हैं, यानी खुद तो चोरी गुनाह किया, खुद तो चोरी किया, लेकिन अब लोगों के डर से जो सो वो दूसरों पर इल्जाम डाल रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोगों से तो शर्मा रहे हैं, लोगों से तो डर रहे हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। जबकि अल्लाह ताला तो उस वक्त भी उनके बीच में मौजूद होता है जबकि वो रातों में मशवरे कर रहे होते। यानी जब उन्होंने चोरी की उस वक्त भी अल्लाह ताला उनको देख रहा था, जब वो रातों में जो सो
चोरी छुपे जो सो अपनी साजिशें करते हैं, अपनी प्लानिंगें करते हैं, उस वक्त भी अल्लाह ताला उनके साथ होता है। मतलब साथ होता मतलब क्या है कि अल्लाह ताला उनको देख रहा होता है, उनकी खबर रख रहा होता है, तो वो अल्लाह से नहीं डरते। यानी जो लोग जो उनको नहीं देखते हैं उनसे तो डरते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो सब कुछ देख रहा है, सब जानता है, उससे नहीं डरते। और जो सो और वो क्या यानी उस रातों में जो मशवरे करते हैं उन बातों की जो कि अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता, यानी जो अल्लाह हकीकत के खिलाफ और जो गुनाह के बातें जो करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, वो रातों में जो मशवरे करते हैं उस वक्त भी अल्लाह ताला उनको देख रहा होता है, उनको सुन रहा होता है, और अल्लाह ताला है जो कुछ अमल कर रहे हैं उसको घेरे हुए है। हाँ तुम हाँ उलाई, हाँ हाँ तुम यही वो लोग हो, जदल तुम अनहुम, तुमने झगड़ा किया इनसे, यानी उनके तारुफदारी करते हुए उनका झगड़ा उनके मुकाबले किया, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, फमन युजादिलुल्लाह, बस कौन झगड़ा करेगा अल्लाह से, अनहुम उनके तरफदारी करते हुए, यौमल क़यामत, क़यामत के दिन, अम मन यकूनु अलैहिम, या कौन होगा उनके उनके तरफ से वकीला, वकील, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हाँ तुम तो हो ये लोग जो कि दुनिया में तो उनकी तरफदारी करते हुए उनके तरफ से झगड़ा करते थे, उनकी हिमायत करते हुए, उनकी तायद करते हुए, बस तो अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह से के सामने कौन झगड़ा करेगा क़यामत के दिन। यानी दुनिया में तो ठीक है, आप ये जो उनकी बात सुनकर तुम लोग उनकी तायद कर रहे हो, लेकिन अल्लाह से कौन तो झगड़ा करेगा, यानी अल्लाह के सामने कौन उनकी तरफदारी करेगा या कौन उनकी सिफारिश करेगा, जबकि जो सो और कौन उनकी वकालत करेगा। मतलब क्या है कि जब क़यामत में अल्लाह ताला फैसला करना चाहेगा, जब उनका उनका हिसाब कर रहा होगा, दुनिया में तो ठीक है तुम उनकी बातों में आकर उनकी तायद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कल क़यामत में जब अल्लाह ताला उनके दरमियान इंसाफ करना कराएगा और इंसाफ करना चाहेगा, उस वक्त में क्या तुम अल्लाह के सामने खड़े होकर उनकी तायद कर सकते हो, उनकी सिफारिश कर सकते हो? हर केस नहीं कर सकते। क्यों कि अल्लाह ताला तो ऐसा नहीं है कि जो सो लोगों की जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने पावर कराने की कोशिश किया, आपको ये जहन में बिठाने की कोशिश किया कि जो लोग आपके पास आए थे वही मासूम है, गुनाहगार नहीं है, और यहूदी गुनाहगार है, तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म नहीं था उस बात का, पूरी बात का, तो उन लोगों ने अपनी जबान से बताकर ऐसा पावर कराने की कोशिश किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल चूंकि हकीकत को नहीं जानते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुकने लगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपको इल्म नहीं था इसीलिए आप तो झुक सके, लेकिन अल्लाह को तो हर चीज का इल्म है, तो क्या क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला उनके दरमियान इंसाफ करना चाहेगा, उस वक्त आप उनका हिमायत ही कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो इससे